Hello, dear students. Welcome once again to Business Studies with Anubha, lesson number 7, chapter Directing, topic Leadership Style. Actually, this is the part 2 of leadership styles. In the previous lesson, we saw there are three types of leadership styles: autocratic, democratic, free reign, or laissez faire leadership style. Now, today we will see the traits of each type of leader, the suitability of each type of leadership style in the organization, then advantages and disadvantages. So let us see first the traits of autocratic leader. So the autocratic or authoritative leader sets goals individually. That means he does not seek any suggestion or any ideas or opinions of the group members. He sets the goal individually. He does not allow anyone to participate in decision making. Downward and one way communication. So in this figure we can see that the leader is giving only instructions and orders to the subordinates and expects them to obey or follow his orders. So this is I style. I am the boss. So he acts as a boss here and does not allow interaction even among the group members. That means the group members cannot talk to each other without permission of the leader. Then democratic leader, the traits are in consultation with group member. That means the goals are set in consultation with the group members. In the previous lesson we saw the features where the group members give valuable suggestions. They express their ideas and views for decision making process. So in brainstorming session, new ideas, chain of ideas or novel ideas are generated by the group members, which can be very useful for the final decision making process. So communication here is vertical and two-way. In this figure we can see that the arrow is downward as well as upward. That means it shows that there is possibility दोनों लीडर भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को दे सकता है, सबॉर्डिनेट्स को, और सबॉर्डिनेट्स भी अपने सजेशंस या फीडबैक लीडर को दे सकते हैं. तो टू वे कम्युनिकेशन होता है. देन द लीडर एक्ट्स एज अ फ्रेंड. हियर ही डज नॉट एक्ट लाइक अ बॉस, क्योंकि वो सबका पार्टिसिपेशन ले रहा है, उनसे बातें कर रहा है, तो वो फ्रेंड की तरह एक्ट करता है. देन ही अलाउज द डिस्कशंस एंड इंटरैक्शंस. मतलब जो ग्रुप मेंबर हैं वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी साइकोलॉजिकल नीड के सेटिस्फैक्शन के लिए भी ज़रूरी है. तो जो ये लीडर है फ्रेंडली वे में एक अच्छा कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है. देन लेज़र फेयर और फ्री रेन लीडर. First is allows freedom to work. Here in the features we had seen that the leader delegates the authority. That means the power of decision making is delegated to the subordinates. So he allows the complete freedom or autonomy to the subordinates to work. There is free flow of communication. Again in this figure we can see that the group members have a free flow of communication, interaction, and moreover they can give feedback to the leader, and leader also can advise as well as and when needed. He can give them help, resources or information as per their need. So here the leader acts as a guide, not as boss, nor as friend, but as a guide. He avoids power and he allows free interaction among the group members. So in the previous video we talked about Mr. Adolf Hitler, who was considered to be an autocratic leader, dictator. So he did not allow anyone to give any, that he was very aggressive or dominating type of personality. Democratic, Dr. Nelson Mandela or Mahatma Gandhi for laissez-faire leadership, we can see that how they have led the people with the values or with the morals of honesty, humanity, tolerance, truthfulness, non-violence. All these are the traits of those leaders. Okay. Now let us see the suitability of each type of leadership style.
Now, none of these leadership style is complete in itself. So the leader may use each of the leadership style as per the requirement of the situation in the organization. मतलब कुछ समय जब ऑटोक्रेटिक स्टाइल की ज़रूरत है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज़ कर सकता है, कुछ समय डेमोक्रेटिक स्टाइल, मतलब वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस सिचुएशन में लीडर को कौन सा लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा सुटेबल लगता है। पर जनरली कौन से टाइम पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सुटेबल है? व्हेन द वर्कर्स आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, मीन्स उनके पास ना तो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्किल नहीं है, या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन वर्कर्स को हर चीज़ बतानी पड़ती है कि इसको इस तरह से करना है, क्योंकि अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो द वर्क विल नॉट बी डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, एक मेस क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे समय में लीडर को उनको सब बताना पड़ता है। ऐसे क्योंकि लीडर किसी से भी सलाह नहीं ले रहा है, तो डिसीशंस जो हैं वो क्विक होते हैं। क्विक डिसीजन जहाँ पे ज़रूरत है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल सुटेबल होता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है इनिशिएटिव के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। जो वर्कर्स हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली रिजिडली फॉलो करना पड़ता है जो बॉस ने कह दिया। आई स्टाइल है ना। जबकि डेमोक्रेटिक में क्रिएटिव, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, मतलब जो जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं, एजुकेटेड वर्कर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में और काम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए। तो ऐसे समय में डेमोक्रेटिक स्टाइल वुड बी मोर सुटेबल। एडिक्वेट टाइम इज़ अवेलेबल, क्योंकि यहाँ डिस्कशंस हैं, इंटरैक्शंस हैं, कंसल्टेशन विद ग्रुप मेंबर्स हैं। अब ऐसे जब होगा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होंगे, तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए और डिस्कस करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। अगर टाइम है तो डेमोक्रेटिक स्टाइल अडॉप्ट किया जा सकता है। न्यू सिचुएशंस डिमांडिंग अडेप्टेशंस। नाउ चेंजेस जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में अनवेलकम होते हैं, पीपल रेजिस्ट चेंज। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ अडेप्टेशन करना है, चेंजेस करना है, तो अगर लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल अडॉप्ट करता है तो वो लोगों को परसुएड कर सकता है कि इस चेंज की क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे समय पर ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हेल्पफुल होता है। देन लेज़र-फेयर और फ्री रेन में व्हेन द वर्कर्स आर वेल क्वालिफाइड, वेल मोटिवेटेड एंड ट्रेड, तब ऐसे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हमें इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स नहीं देने पड़ते। वो खुद इतने समझदार होते हैं, इतना उनके पास नॉलेज है कि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। मोटिवेटेड हैं, खुद से अंदर से वो उत्साहित हैं काम करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। देन टाइम एंड एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, जो उनको गाइडेंस चाहिए उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, टाइम है उनके काम करने के लिए। क्योंकि अगर जो यू स्टाइल का ये लीडरशिप है, इसमें आपस में बहुत ज़्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी टाइम और एक्सपर्टाइज की ज़रूरत हो सकती है। देन सिंपल वर्क प्रोसीजर एंड मेथड्स। सो ये वाला जो लीडरशिप स्टाइल है, कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क प्रोसीजर नहीं है या वर्क मेथड्स नहीं है, उसके लिए लेज़र-फेयर मोर सुटेबल हो सकता है। देन advantages of autocratic leadership style: quick decision, so there is no wastage of time here because there are no chances of conflict. Okay, there is no kind of discussion here, no interaction, so there is no wastage of time and quick decisions can be taken. There will be no delay in the work. Productivity and profitability, क्योंकि wastage of resources नहीं है, जो लीडर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो वर्कर्स को टाइम वेस्ट नहीं करने देता, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के कारण प्रोडक्टिविटी हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। प्रोफेशनल रिलेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स, देर इज़ नो स्कोप और चांसेस फॉर द ग्रुप मेंबर्स टू गॉसिप अबाउट ना। उनके पास ऐसा टाइम ही नहीं है, जो लीडर है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो उनको ऐसा कोई मौका ही नहीं देता कि वो अपना टाइम गॉसिप्स में या इधर उधर की बातों में, पर्सनल बातों में
टाइम वेस्ट करें, प्रोफेशनल रिलेशन रहता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि द वन अ कॉइन हैज़ गॉट टू साइड्स ना, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि वर्कर्स जो हैं, सबॉर्डिनेट्स या फॉलोअर्स हैं, वो डीमोटिवेट होते हैं जब उनके ऊपर हर डिसीशन थोपा जाता है, तो दैट में जनरेट डेवलप फ्रस्ट्रेशन अमंग द सबॉर्डिनेट्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ डीमोटिवेशन, लो मोरल, लो स्पिरिट्स, काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती, उनको हर चीज़ में पुश चाहिए। गैप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, तो वो फॉलोअर्स जो है लीडर की बात सुन तो लेते हैं, मान तो लेते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है, टेंशन रहता है। क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव कर्ब्ड, नो डेवलपमेंट, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कोई डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो जैसा कि हमने पहले मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी नहीं होती है, स्टीम नीड पूरी नहीं होती, सोशल नीड पूरी नहीं होती। तो इस तरह की इस लीडरशिप स्टाइल की ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। देन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में है टीम वर्क। नाउ टीम वर्क मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टी टुगेदर, ई एवरीवन, ए अचीव्स मोर। तो जब टीम वर्क होगा तो इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, और इस तरह की लीडरशिप स्टाइल में टीम वर्क को एनकरेज किया जाता है। हाई मोटिवेशन एंड मोरल, बिकॉज देयर इज़ opportunity to express their ideas, new ideas and suggestions are invited and appreciated, तो ये उनकी मोटिवेशन और मोरल के लिए अच्छा है। देन क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव रिकॉग्नाइज्ड, सिमिलर पॉइंट है कि उनकी इनिशिएटिव को, कोऑपरेटिव क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड किया जाता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन है, कंसल्टेशन है, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड देयर विल बी डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन एक्शन. Then hiding leaders' inefficiency. Sometimes it is possible that the leader hides his inefficiency because he is not able to take decision. He is taking the help of the group members to take decision. So which is not good, which is not correct. It means that he is evading his responsibility, which is not good for the leader also and the organization also. Over expectation of employees. In democratic leadership style, the employees or the subordinates may start expecting the leader to take their suggestions and participation in each and every kind of matter. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर्स है उसमें कंपनी खुद अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अपनी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयज़ की बढ़ गई है तो वो सोचते हैं कि उनको हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा. देन एडवांटेजेस ऑफ लेजरस्फीयर, हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, बिकॉज देयर इज an atmosphere of trust, independence, there is high level of job satisfaction and morale among the subordinates. Sense of responsibility, because they have to take challenges, okay, they are taught to take challenges, so there is sense of responsibility and belongingness to the organization. उनको जो है जब मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद ही डिसीजन लेंगे, खुद ही काम करेंगे, तो एक तरह से उनके आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और वो अपने आप को ज़्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फुल कैपेसिटी और पोटेंशियल यूटिलाइजेशन. डिसएडवांटेजेस, देयर इज़ नो चेक ऑन द सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मेंस. तो अगर लीडर जो है उनको इस तरह से फ्री छोड़ देगा तो अगर वर्कर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं तब तो ठीक है, पर फिर वर्कर्स के अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि कोई देखने वाला नहीं है, तो वो उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो ये गलत हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई है पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो लीडर के पास है, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी टीम मेंबर्स में, तो दे कैन
लैप्स इन देयर वर्क, मतलब अपने काम को ढिलाई से कर सकते हैं. नो गाइडेंस और केओस. सो अगर गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिलेगा लीडर से, सो देर आर चांसेस ऑफ केओस इन द ऑर्गेनाइजेशन. I end today's video with one quote. Leadership is an action, it is not a position. तो जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो लीडर को इसलिए अडॉप्ट करनी है कि वो सिर्फ उसको अपने पोजीशन में नहीं रखना है, उसको एक्शन में लाना है. He has to translate the vision into reality. Okay, with that I end today's lesson. Thank you for watching. You can put up your queries in the comment section. Thank you.